So I will quickly first take a poll on how many of you have given what paper and could not clear that. Kaushal, are you there in the meeting? Just a second. So there will be a poll soon by the team. ठीक है. तो मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोग मेजरली कौन से पेपर के लिए यहाँ पे हो. Any CS2 students, we are also keeping a session at 8:30, which is specifically for CS2 students, जिनका CS2 नहीं निकला and they will be reappearing for it. तो उनके लिए स्पेसिफिकली हम 8:30 पर रखेंगे. नाउ व्हाट वील डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग चैट बॉक्स में पेस्ट करना स्टार्ट करो, बिकॉज आई विल बी फर्स्ट ऑब्वियसली डिस्कसिंग द जनरल टॉपिक्स एंड देन आई विल टेक अप योर रेलेवेंट डाउट्स. So all of you just quickly start posting whatever doubts you all have, whatever questions you all want. There is this poll, which paper did you appear for and did not clear, and it's a multiple choice question I guess. तो आप लोग quickly इसमें poll डाल दो so that I understand कि क्या इसका result है. ठीक है. And you all can also start posting your doubts in the chat box. Alright. The thing is, एक चीज हम समझते हैं, जो मेरा knowledge है of teaching. I started teaching in 2018 November, October. 2018 October I started teaching. I started with ACIT. And then तुरंत बाद paper B launch हो गया था. So I was the first one among the first few teachers in India who started teaching paper B of all the 4 papers together. And then I started teaching CS2, I started teaching CB2, CP2, CP3, SP5 over time. So एक general चीज जो मैं आप सबके साथ share करूंगी today, after clearing all the papers and after having seen my friends, my students now obviously qualifying, is that failure is a part of this entire process. अभी तक आप मानोगे नहीं, hardly दो, आई थिंक एक या दो जिनको मैं जानती हूँ जो क्वालिफाई किए हैं विदाउट एनी फेलियर, अदरवाइज anyone I know, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिनको देख के लगता था अरे इसका तो CS2 एक बार में निकलेगा, अरे इसका तो CM1 एक बार में निकलेगा. आई हैव सीन देम फेलिंग, एंड स्टूडेंट्स जिनका लगता था कि अरे इनका तो शायद हो सकता है नहीं निकले, आई हैव सीन देम क्लियरिंग. ठीक है. सो it's not about how intelligent you are, definitely a part of it is definitely is, but at the same time जो दो सबसे important चीज चाहिए इस कोर्स में वो है हार्ड वर्क और दूसरा है कंसिस्टेंसी. ठीक है. तो जो इंसान कंसिस्टेंटली एग्जाम अपेयर कर रहा है एंड एनी स्टूडेंट हु इज वर्किंग हार्ड फॉर इट will definitely make it through. So I have not seen anyone, trust me, who hasn't failed once before qualifying. So some fail earlier, like some they fail in the earlier papers like CM1, CS1, maybe CS2. Some fail at a later stage. Maybe they are not able to clear CP1 in next like 1 or 2 attempts. Some fail at SP level. Some fail at essay. They are stuck with like 3-4 terms. They are only stuck with the essay paper. So it's a part of the entire journey. You are not the only one sitting over here and saying that, okay, I'm failed. No. If you haven't, then you haven't done it right. Right? So, or maybe you are exceptionally God's child who hasn't failed. So, again, failure is a part of it. So, crying and getting demotivated, comparing yourself with friends, all of these things are something that we generally do.
and this is something I have also done. I see my students do, I see my friends also do the same. But आपको ये चीज समझना है कि ये सब चीज करके कुछ नहीं मिलने वाला है. At the end, you are yourself. You are going to, work, get into a job for yourself, for your family, for your parents, for your siblings. So at the end of the day, it doesn't matter where your friend is standing. It doesn't matter, how many attempts you have appear for. At the end, only thing which will matter is you qualifying. So coming back to the track, अगर मान लेते हैं कि you were appearing for any big paper, CM1, CS1, CS2, CM2, अगर ये पेपर्स आपके नहीं निकले हैं कोई भी एक, बट आपने दूसरा पेपर स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, तो अब मैं क्या करूं? फॉर एग्जाम्पल, आई अपियर्ड फॉर CM1, आई डिड नॉट क्लियर, बट आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग CS1. So what should I do? Now there are two things. First, you need to see what is your marks. So if in CM1 you have scored like below 40, or let's suppose even below 43 somewhere, then highly it's a chance ये है कि आपका concept clarity उतना नहीं है if you have scored below 40. If you have scored above 45, above 50, concept clarity is there, but you haven't practiced well, typing नहीं किया, paper भी अच्छे से नहीं किया, marking distribution आपको मिल जाएगा, तो आप वहां भी देख के समझ सकते हो. So अब इस situation में क्या करें? Now anyone who has scored above 50 has generally the concept is good, but you haven't practiced a lot. So two things you can do. One, you can appear for two papers together in September, CM1, CS1 both. Or what you can do is you can let's suppose if you feel that CS1 मैंने बहुत अच्छा से पढ़ लिया अभी तक, काफी अच्छा खासा चंक मेरा कवर हो चुका है, तो अब मैं CS1 ही दूंगी, and then CM1 I will do in April along with some big paper, maybe CM2. CM1 के साथ CM2 you can easily combine. ठीक है, तो ये एक आपका थॉट प्रोसेस इस वे से चल सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे ये नहीं सोचना कि टर्म वेस्ट हो गया. फेल होना एंड टर्म वेस्ट होना दो अलग बात है. वेस्ट कब होता है? जो आपने किया नहीं अटेम्प्ट, आपने चांस नहीं लिया, आपने पेपर ही नहीं दिया. बट अगर हम बोलते हैं वेस्ट, बट हम बोलते हैं कि आपने फेल आप हो गए, मतलब आपने चांस लिया, आपने किया, आपने ट्राई किया, बट आप फेल हो गए. सो इट्स नॉट अ वेस्ट, इट्स नेवर अ वेस्ट. ठीक है, तो ये चीज तो दिमाग से निकाल दो कि एकदम वेस्ट हो गया, एकदम वेस्ट हो गया, ये बोलना एकदम बंद करो. ठीक है, सो आई विल क्विकली कम टू योर क्वेश्चंस. लेट मी जस्ट सी व्हाट यू गाइस हैव put in. So I can see maximum votes are obviously as expected CM1 के, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, that's why CM1 में हमारे को ज्यादा वो मिलता है. बट इसका ये मतलब नहीं कि CM1 लोग ज्यादा फेल होते हैं, नहीं, CM1 लोग ज्यादा देते हैं. Then I can see few votes for CS1, CS2. CM2 के बहुत कम मुझे दिख रहे हैं, बाकी पेपर्स के भी मुझे बहुत कम दिख रहे हैं. CS2 आई एम नॉट स्पेसिफिक पेपर, स्पेसिफिक हम क्लास में डिस्कस करेंगे, विच इज आई एम गोइंग टू टेक एट 8:30. ठीक है, तो CM1 and CS1 students, as I can see, most of you have not cleared it. So CM1 जिनका नहीं निकला है, आप लोग ने ऑब्वियसली CS1 का प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, या अगर आपने CS1 दे रखा है तो आपने CS2 या CM2 का प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया था. अब आप मुझे बताओ कि आपका CM1 में कितना मार्क्स आया है. यू कैन मे बी पुट इट इन द चैट बॉक्स. इफ यू आर above 50, above 55, I don't know what's the cutoff in CM1, but in that case practice is lacking, which you can easily do in the next 2 months. You just have to टाइपिंग प्रैक्टिस करना है और पेपर भी प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा आपको दूसरा और कुछ नहीं करना है, एंड यू विल बी देयर. क्योंकि ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, smart people are able to clear papers faster than intelligent people or hardworking people. I've seen this. I'm very, very, very hardworking. I used to be very hardworking when I used to study. But when I see people who are way smarter than me, जिनको approach करना आता है एग्जाम को, वो अभी हमारा बैंगलोर में इंडियन एक्चुअल कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें we had one speaker, Abhishek. He is a qualified, actually he is from Calcutta but he is working in Bangalore. उसने बहुत अच्छी चीज बोली. उसने बोला कि if you have failed in this attempt, then make sure you change your way of studying in the next attempt, otherwise the result will be repeated. इतना अच्छा बोला. I studied CP1 for 2 terms. I could not clear. I did not even change my study pattern. In my 3rd attempt, I changed my entire study pattern and I passed. तो आपको कैसे समझना है कि आपका स्टडी पैटर्न गलत है?
आप देखो कि आप मॉक्स में परफॉर्म कर पा रहे हो, आप पास्ट पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, आप पेपर भी कर पा रहे हो टाइमली फिनिश. Are you able to show all the steps? Are you able to do typing easily without getting stressed? If all these points are checked, then your practice, then your way of studying is fine. Otherwise, you surely have to change it. You have to practice typing a lot. Generally, typing is one of the hindrance in the initial CMCS papers due to which students fail. मुझे आता है पर मैं टाइप नहीं कर पाई, टाइम खत्म हो गया, एंड मुझे कॉन्सेप्ट आता था, मैं कर सकती थी, बट आई कुड नॉट टाइप. तो ये यू हैव 2 months, you have July half, August full, September half, you have almost 2 months बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट. तो आप लोग इजीली, बहुत इजीली आप लोग टाइपिंग प्रैक्टिस करो. इनफैक्ट फॉर दैट मैटर एवरी डे पूरा पूरा दिन खाली टाइपिंग करो. यू डोंट हैव टू राइट एंड डू. लाइक आप लोग क्लासेस में, लाइव लेक्चर्स में अगर लिख रहे हो दैट्स फाइन, बट आप लोग बाकी जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हो, सिंस ऑल ऑफ यू हैव अपियर्ड फॉर पेपर वंस, नाउ यू ऑल हैव द आइडिया कि टाइपिंग कैसे होता है. आप लोग अब फर्स्ट टाइमर्स नहीं हो, तो आप लोग इजीली अब टाइपिंग पे फोकस कर सकते हो. ठीक है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस टाइपिंग अ लॉट एज मच एज यू कैन. जितना पूरा पूरा दिन आप टाइप करो, एंड दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू फॉर द फर्स्ट CMCS पेपर, क्योंकि उसके आगे तो उतना कुछ मैथमेटिकल स्टेटिस्टिकल नोटेशंस यूज नहीं होता, अनलेस इन 1 or 2 SP पेपर्स. कोई भी पेपर में आपका उतना मैथमेटिकल स्टेटिस्टिकल नोटेशंस नहीं यूज हो रहा है जितना फर्स्ट 4 पेपर्स में हो रहा है, राइट. एंड अलोंग विद दैट पेपर बी, हो सकता है आपने पेपर बी को कम वेटेज दिया होगा, कम इंपॉर्टेंस दिया होगा, तो वो अब आपको नहीं करना है. अब आपको पेपर बी को इक्वल वेटेज देना है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर CM1 एंड CS2. CS1 CM2 फिर भी पेपर भी ऑन अ इजियर साइड होता है, तो उसको थोड़ा कम टाइम हम देंगे तो भी चलेगा. बट स्टूडेंट्स हु आर गिविंग CM1 CS2 have to put in their entire effort into paper B as well. वो आप लोग मार्किंग डिस्ट्रीब्यूट, नाउ फर्स्ट थिंग मैम कैसे अपना चेंज करना है, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन लेके बैठो क्वेश्चन वाइज. ओपन द एग्जाम पेपर. इफ यू हैव, आई डोंट नो, आपका सेंटर बेस्ड एग्जाम था तो आपके पास सॉल्यूशंस नहीं होंगे, but if you even remember how your solution was, what have you given in the exam, तो आप क्वेश्चन एंड मार्क्स रिलेट कर पाओगे कि कहाँ पे डिडक्ट हुआ है, क्योंकि यूजुअली फाइनल आंसर जस्ट हैज लाइक 1 mark 1.5 marks. CM1 CS2 इसमें जनरली स्टूडेंट्स फेल होते हैं बिकॉज ऑफ स्टेप मार्किंग. वो स्टेप मार्क्स अच्छे से नहीं, स्टेप मार्किंग अच्छे से नहीं दिखाते, तो आपको स्टेप्स आपने अच्छे से नहीं दिखाया होगा. यू कैन गो थ्रू द एग्जामिनर्स रिपोर्ट. ऑल्दो एग्जामिनर्स रिपोर्ट इज जस्ट एन इंडिकेटिव सोल्यूशन. तो अगर आपको लगता है कि एग्जामिनर्स रिपोर्ट में जैसे जैसे हमने वैसे किया है तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, because examiner's report is just an indicative solution. What do I mean by indicative solution? कि भाई वो आप जो भी examiner's report पे देख रहे हो, वो आपको इंस्टीट्यूट एक तरीके से बस एक गाइड कर रहा है कि ये आपका सोल्यूशन इस तरीके से फ्लो होना चाहिए, फ्लो ऑफ सोल्यूशन दिखाता है. आपको वो पूरा एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देता है, इट्स जस्ट एन इंडिकेटिव सोल्यूशन. ठीक है. तो आपको यहाँ पे अपना अप्रोच चेंज करना है. जैसे मैंने क्या किया था CP1 में, मैंने देखा कि हाँ मेरा हो सकता है पॉइंट्स, मतलब जो मैंने पॉइंट्स लिखा है उसमें मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिया. ठीक है. तो आई डिड मोर ऑफ एसिड्स, तो वो CP लेवल में है, मैं उतना नहीं डीप जाना चाहती हूँ अभी, इट्स नॉट. आप लोग एक्स असाइनमेंट्स करो. अगर आपने एक्स असाइनमेंट्स नहीं सॉल्व किया है, वेरी बैड, वेरी 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 बैड. सॉल्विंग एक्स असाइनमेंट फॉर CMCS पेपर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप लोग मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 पास्ट पेपर्स बैठ के एज अ मॉक लिखो, प्रॉपर इन एग्जाम कंडीशन, 3 hours 15 minutes 20 minutes पूरा प्रॉपरली उसको लिखो. पेपर ए एंड पेपर बी मिनिमम 5-6 पेपर्स इन एग्जाम कंडीशन. बाकी पास पेपर सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ दोज आर रीअपियरिंग फॉर द सेम पेपर, उनको क्या करना है, उनको पास पेपर्स डायरेक्टली स्टार्ट करना, सॉल्व करना. डोंट गो बुकलेट वाइज. बट येस, इफ यू वांट टू डू बुकलेट, एक बार पूरा बुकलेट, सारे बुकलेट्स बना लो रिविजन नोट्स के. अदरवाइज यू डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग द पास पेपर्स. फर्स्ट go through the notes and then you can take the extension for the classes, and then you can maybe do the revision classes which will happen in the month late of July, in the month of August. उसके पहले आप 1-to-1 mentoring and वो सारे MCQ टेस्ट वो सब भले आप ले सकते हो. बट लाइव क्लासेस अगर आपको लगे हाँ ये टॉपिक करना है तो अटेंड करना. अदरवाइज आई डोंट थिंक, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो करने का जरूरत है. ठीक है. नाउ आई विल कम टू क्वेश्चंस क्विकली. लेट मी अगेन गो बैक एंड check the polls.
क्लास में 60 लोग हैं, यहाँ पे 58 लोग हैं सेशन में, बट ओनली 36 पीपल हैव वोट, मतलब बाकी लोग पास हो गए, वो ऐसी सेशन अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है, आई डोंट नो, हाउ विल आई नो, क्योंकि आप लोग वोट ही नहीं दे रहे हो, वोट तो दो कम से कम। ठीक है, सो नाउ क्विकली सिद्धांत अरोड़ा इज सेइंग, मैम आई कुडंट क्लियर CS2. CS2 I will discuss in our 8:30 session. Cool. I failed CM2 by 50, Ashteen Giri by 50. जिससे मैं बात कर रही हूँ वो एक बार हैंड रेज करो जस्ट टू शो कि आप क्लास में हो, ठीक है, असीम गिरी, ठीक है। I failed CM2 by 58 marks, just 1 mark away from passing. I failed 1 mark away CP1, एक बार 1 मार्क अवे, एक बार तो ज्यादा था, एंड SP5 भी, तो 1 मार्क वाला जो दुख है ना वो मैं समझती हूँ, बट पास द CS2 with 69, वेरी गुड। कैन यू प्लीज लुक एट दिस, क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर का सुनो, एक चीज मैं क्लियरली बोल देती हूँ, अगर आपका मार्क्स, एक सेकेंड, अगर आपका मार्क्स रिलेटेड कुछ इशू है ना तो इंस्टीट्यूट अपील नहीं सुनता है, मार्क्स रिलेटेड इंस्टीट्यूट कोई अपील, हाँ बोलो क्या है इसमें। मैम कुछ नहीं, वो प्रवीण सर को भी यही पढ़ा था तो फिर आपको भी सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, तो फिर आगे भी पढ़िए मैम प्लीज। मैम अच्छा क्वेश्चन ओके, नंबर 4 में 8 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो फिर उसमें 1 नंबर ही मिला है, जबकि प्रोसेस पूरा सही है, एकदम सही है प्रोसेस, फिर भी 1 ही नंबर दिया है। सी अगर तुम्हारे को ऐसा लग रहा है तो फिर यू कैन लाइक अपील कर सकते हो CM2 के लिए, बट अपील करना अपनी जगह पे है। सितंबर के लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हो इन बिटवीन वो नहीं छोड़ सकते, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग? CB2, currently CB2। ओनली CB2? Yes ma'am, because my college exams are also on the same time, So so okay, Asim, then in that case you just appear for CB2. CM2 you up you you can do the I'm appeal thing. thinking of CM2 and CP2 in the April, CM2 and CP2. That is good. That is definitely. And since you have college exams, so anyways, you will not be able to appear for CM2 in September. So if you feel that ऐसा कुछ है कि तुम्हारा सही था marks but you did not get it, तो फिर you do the appeal part. Now appeal का process मुझसे मत पूछना अभी because I'm not very much aware of it. You can go and search it on their website. एंड जो भी आपको, मुझे जहां तक लास्ट मैंने जब चेक किया था, क्योंकि मेरा जब नहीं निकला था CP1 फॉर 1 मार्क, तो मैंने यही कंक्लूड किया था कि दे विल नॉट डू इट फॉर, बट इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड पर्टिकुलर 100% श्योर अबाउट इट, देन यू कैन गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस। दे विल नॉट टेक द मनी अनलेस दे आर ऑल्सो श्योर, ऐसा कुछ होता है। सो यू कैन गो अहेड एंड डू द अपील पार्ट, appear for CB2 nicely so that at least you clear CB2 this time. All right? Okay ma'am, thanks. ठीक है, बट अपील करना, इफ यू आर what do I always say this, do what your heart says, ठीक है, do what your heart says. So if your heart says that no, I have to appeal, I have done correctly, तो फिर apply करो, no problem. Can someone tell me if the poll is visible? Hi, Sushil Verma. Ma'am, I had a suggestion earlier, we had access to lectures on the same topic of different writing, but this sometimes the concept is difficult. ये तो इतना, मतलब ये कौन है? Vasu Vinod Chandak. Can you unmute? Can you just show your face also? हेलो मैम, मैं ऑडिबल? Yes. मैम कैमरा वर्क नहीं कर रहा, सो आई वोंट बी कैमरा वर्क नहीं कर रहे is a general thing for everyone. See, ये जो तुम multiple teachers बोल रहे हो, all of us are from same tree. एक ही पेड़ के फल हैं हम, ठीक है, सारे फैकल्टीज। तो ऐसा नहीं, आप 1-to-1 मेंटरिंग बुक करो ना, उसमें पूछो, नहीं मैम, क्लास में पूछो। मतलब like CM1 and CS like I have attempted CM1 CS1 and CB2 अभी तक, ठीक है। तो मैम जैसे CM1 CS1 और CB2 CS1 जब अटेम्प्ट करा था तो उस वक्त ऐसे लाइक मल्टीपल टीचर्स अभी कौन सा पेपर के लिए बोल रहे हो अभी तुम? CM मतलब CM2 के लिए मैम। CM2 के लिए प्रवीण सर के सारे क्लासेस अपलोडेड हैं, मतलब और प्रवीण सर ने अपने जो बेस्ट बेस्ट क्लिप्स है वीडियोस के, उन्होंने वो अपलोड करके रखा हुआ है। तो मैम ऐसे मैक्सिमम चीज समझ आ जाता है, बट ऐसे कुछ वीडियो में क्या होता है कि मैम अच्छे समझ नहीं आता, और ये मैंने पिछले पेपर्स में एक्सपीरियंस करा कि कोई और वीडियो देखने से, कोई और टीचर की वीडियो, प्रवीण सर का कोई और वीडियो देखने तो से। एक काम करो ना, 1-to-1 मेंटरिंग बुक करके देखो।
जो हमारे मेंटर्स हैं उनसे डायरेक्टली डिस्कस करो कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें तुम्हें डाउट है, एंड देखो कि वो रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं. इफ स्टिल दैट्स नॉट हैपनिंग फॉर यू, देन यू कैन ड्रॉप अस अ टेक्स्ट मैसेज, देन वी विल सी व्हाट कैन बी डन. बट ऑब्वियसली पूरे टॉपिक में से कुछ कुछ एक टॉपिक होगा ना जहाँ डाउट होगा. So for that you book 1-to-1 mentoring, 15 minutes का slot है, you can easily cover one topic, one concept. Directly उनसे पूछो, समझो. If you are still not able, tell them this thing that ऐसा ऐसा issue मुझे हो रहा है. Also drop us a message after doing that, after following the process, and then we'll see. ठीक है? एंड मैम एक और डाउट था, पूछ हाँ. लो अभी. मैम जैसे इस बार मैंने CS1 दिया था, तो मतलब आई फील मिजरेबली, मतलब 40 से भी कम आएगा, ठीक है. एंड एग्जाम में जाके ऐसे रियलाइज हुआ कि कंसेप्ट बहुत वीक रह गए थे. नाउ आई एम टेम्पटिंग CM2. तो CM2 में मैम ऐसे कि डेरिवेटिव्स, ब्राउनियन मोशन, ये सब हो गया है. सो मैम अभी सितंबर वाले अटेम्प्ट में मतलब इज इट फीजिबल कि मैं आई गो फॉर बोथ CS1 एंड CM2 टुगेदर, या फिर फुल फोकस CM2 ओनली? CM2 में कितना आया था? मैम CM2 तो फर्स्ट इस बार पहली बार दे रहा हूँ. CM2 तो सितंबर में दूंगा. No, just go for one paper. ओके, Because थैंक्स. CS1 you got very bad marks, na? So राइट. your concepts are not at all good. So you go for CM2. CM2 I hope तुम्हारा काफी अच्छा खासा चंक हो गया होगा ना कवर. तो 3 बुकलेट्स हो गए. That is very bad. क्लासेस में तो ज्यादा हो गए हैं. हम अभी एग्जाम्स भी अभी खत्म हुए थे, ये लाइक सब जून रबिश है. रबिश बात है कि कॉलेज एग्जाम है. यू आर इन विच ईयर? में. थर्ड, नाउ आई एम इन थर्ड ईयर. कॉलेज गुरु गोविंद सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली कॉलेज है. दिल्ली वाले तो ऐसी कॉलेज में कुछ नहीं करते हैं. हम इको ऑनर्स से पढ़ना पड़ जाता है. अरे इको ऑनर्स की स्टूडेंट्स भी कुछ नहीं करते. ठीक है मैम. यहाँ मैं जेवियर्स में इको ऑनर्स इज सो रिगरस, स्टिल स्टूडेंट्स आर क्लियरिंग 2 पेपर्स. तुम बोलो कि तुम टाइम पास कर रहे थे इतने टाइम से, मत मेरे को ये सब बोलना कुछ और. आई अंडरस्टैंड यू ऑल वेरी नाइसली, ठीक है, अंदर अंदर आई अंडरस्टैंड तुम लोग का क्या चलता है. अब प्योर फॉर ओनली CM2 बिकॉज CS1 तुम्हें शुरू से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना होगा. दोनों पेपर तो नहीं करने. एनी वन यू डिसाइड एंड गो अहेड विद दैट. आई वुड सजेस्ट CM2 सिंस यू आर ऑलरेडी स्टडिंग फॉर इट. But every day if you're not studying 7 to 8 hours, you'll anyways not clear CM2 also. And ये सब जो तुम बोल रहे हो ना, अब लेक्चर नहीं समझ में आ रहा, टॉपिक कुछ ये प्रॉब्लम हमेशा ना खुद के अंदर ढूंढो पहले, फिर सामने वाले के अंदर ढूंढना. मैंने प्रॉब्लम नहीं बताया. नहीं, आई अंडरस्टैंड की सजेशन है या जो भी है, बट यू कुड हैव बुक्ड 1-to-1 मेंटरिंग ना. उसका सोल्यूशन तुम ढूंढ चुके होते अभी तक खुद से, या तुम लाइव क्लास में ये चीज बोल चुके थे कि मैम सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, आप समझाओ वापस, अब वापस समझाओ, अब वापस समझाओ, वापस समझाओ. समझ रहे हो? ठीक है. मानव is saying ma'am I could not clear CS1, so could you guide me how should I clear, and please can you guide me. CB1 तुम ऑलरेडी कर रहे थे मानव, बता दिया. If you are there quickly raise your hand, otherwise I'll move to the next person. Have you taken CB1 already? नो मैम, अभी CM1 कर रहा हूँ. CM1 कर रहे हो. CS1 में कितना आया? 40 से कम. Then you go CM1 में कितना कॉन्फिडेंस है? CM1 तो अभी हो जाएगा मैम, क्योंकि वो तो सर के साथ ही हूँ. तो कॉन्फिडेंस है CM1 में? हाँ मैम. तो CM1 दो और कुछ भी मत सोचो, अपना दिन रात एक करके पढ़ो. देखो जब आप एक बार फेल होते हो ना, भगवान आपको टेस्ट करता है कि आप नेक्स्ट में डबल एफर्ट. अगर आपका फ्रेंड 5 आवर्स पढ़ रहा है तो आपको 8 आवर्स पढ़ना है. हाँ मैम. तो और कुछ मत सोचो. CB1 से करने का जरूरत नहीं है. गो फॉर CM1 ओनली. सिंस यू हैव नॉट क्लियर्ड, एक और पेपर करके नया कोई फायदा नहीं है. CM1 ऐसे पढ़ो कि अब क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में CS1 CB1 या CS1 CB2 साथ में दे देना. ठीक है? ओके मैम, थैंक या यू. CS1 CS2 भी दे सकते हो अप्रैल में, अगर ओके. कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो. ठीक है? मैम. Manvi, raise your hand. Ma'am, I started with CS2. I have failed CMN. Please send me. I am an IIM student, but I have given CMN from IFA. CMN, how much you got? Ma'am, 22. Then CS2, are you with me? No, ma'am. Manvi, do you want to give like study for actuarial science, or you are just doing time pass? Ma'am, I want to.
Then if you are getting 20, then you have clearly not studied for CM1 first of all, and if you are not with me in CS2, you are not clearly interested in this course. Ma'am, actually for CM1, my major problem lied in the paper B because I started it very अब late. में अगर 0 भी आएगा तो आपका 20 कैसे आ रहा है ओवरऑल? Ma'am, I बताओ. realized that my concepts were not very good for CM1. Now what do you want to do? You want to go ahead with CS2? You'll appear in II November. From I, yes, ma'am. Then you do for CS2. CS2 में कहाँ पे हो तुम? Just tell me the chapter. Ma'am, I am at risk models. तो रिस्क मॉडल्स तो क्लास में एनीवेज चल रहा है. नहीं, रिस्क मॉडल्स में हो तुम? हाँ जी मैम. रिस्क मॉडल्स तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया. Ma'am, I'm not taking coaching from actuators for CS2. अच्छा, okay. See, Manju. if CM1 you have got 20, which is very bad, you have to do it from scratch. So Yes. you can do any one paper. I would suggest CS2 अगर तुम पहुंच चुके हो, मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम CS2 में कर लोगे तो go for CS2 only. Okay. CM1 you anyways have to go from scratch. Yes, ma'am. So you appear for it in the next term. अभी इस term CS2 अच्छे से पढ़ के दो. All right, ma'am. Thank you. Pooja, ma'am, I got 48 for 90% of CP2 and thought of taking CP2, but now I'm not sure whether I should. Yes, you should go for 2 papers. You should go for CB2 and CM2 Pooja Shah, because 80% of CB2 is done, which is a good chunk. So CM2 48 आया, मतलब तुम्हारा failed by a lot of marks definitely, but then again 48 is not very 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 bad. तुम्हारा कहीं ना कहीं again practice lack हो रहा है. पूजा you are there. मैम बट मैंने जब पहली बार CM2 दिया था तब मेरा 47 आया. तो आई हैड अ टॉक विद प्रवीण सर, तो वो मेरे को बोली कि कहीं ना कहीं तुम्हारा आंसर लिखने में, कमेंटिंग में, वो सब में एरर्स होगा ना, वो तो- प्रैक्टिस एरर बोलते हैं उसको. मैम मैंने सर के साथ पर्सनली बैठ के वो सब प्रैक्टिस किया था एंड एक्स असाइनमेंट सर के साथ करने से नहीं होता है, तुम्हें खुद के साथ पर्सनली बैठना होगा. मैम मैंने किया था, मैंने मतलब एक्स वाई मॉक टेस्ट कुछ भी नहीं छोड़ा था इस बार, फिर भी सेम मार्क्स. Because in that case, you know what is happening? You are, मैंने क्या बोला अभी? You are using the same approach again to study. You have to change your approach entirely. तुम क्या बैठ के पूरा पेपर एक बार में सॉल्व किया है तुमने 3 hours 15 minutes लेके? मैम कुछ पेपर्स पूरा सॉल्व किए, बाकी जैसे कॉलेज आके तो आधा किया फिर आधा रात को किया. कितना? कुछ as in कितना? मैम 3-4 पेपर्स ऐसे पूरा 3, अपार्ट फ्रॉम दी आप जो मॉक देते हो उसको छोड़ के 5 पेपर्स. पेपर भी पूरा बैठ के वही जितना मैंने पेपर ये किया है उतना मैंने पेपर भी पूरा बैठ के किया है. हाँ, तो तुमने किया है, बट हो सकता है तुम्हारा इवैल्यूएशन ढंग से नहीं हो रहा है. You are using IFOA this examiner's report as your base, which Yes. should not be the base. जैसे मैंने बोला, it's an indicative solution. Use revision notes as the base instead. Revision notes के जो answers हैं उसको go through करो. Okay. वो पूरा अप्रोच बताते हैं. तुम्हारा कमेंटिंग बताएंगे तुम्हें. 1-to-1 सेशंस बुक करो जितना हो सके. उनको अपना 1-2 क्वेश्चन दिखाओ कि देखो ये मेरा. तुम अपना अभी जब पूरा मार्किंग शीट गो थ्रू करोगी, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें तुमको जिसमें लगे कि इसमें मुझे बहुत कम मिला है, तो वो अपने आप से वापस से खुद से लिखो, बिकॉज सोल्यूशन यू मे नॉट हैव इट. खुद से सोल्यूशन वापस से बनाओ एंड 1-to-1 मेंटर के साथ डिस्कस करो उनको दिखा के. तो मैम अभी सितंबर में मैं 2 दे दूं CB2 और CB2 अगर तुम्हारा हो गया है 80%, तो उसको पढ़ना है. एंड CM2 क्योंकि तुमने पढ़ लिया है 2 बार, सो कॉन्सेप्ट्स आर देयर. व्हाट इज नॉट देयर इज यू हैव टू चेंज द पैटर्न ऑफ योर स्टडीज एंटायरली, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी रिपीटेड. मैम CM2 तो मैं इस सितंबर दे ही नहीं पाऊंगी क्योंकि दोनों क्लैश हो रहा है, CB2 और CM2. पेपर ए CM2 का और CB2, तो मेरे को CP2 देना पड़ेगा अगर मेरे को देना है तो. इफ दैट्स द केस तुम CP2 ले लो, CM2 फिर नेक्स्ट टर्म देना. टेक अ मैम ब्रेक. मैंने CP2 अभी तक लिया ही नहीं है, तो मैं मतलब CP2 आराम से 2 months में हो जाता है. अच्छा. बहुत आराम से हो जाता है. कुछ भी- जैसे अभी क्लासेस में चैप्टर 18 तक हुआ है CB2 में, तो मैंने अभी चैप्टर 17 स्टार्ट किया है.
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा CP2 साथ में. ठीक है मैम, थैंक यू. Hi ma'am, I have attempted Rishabh Goenka. CS2, after that I have not. Let me start. Rishabh, if you want to take CM2, you can, but then you will have to give a lot of time to CM2. It's not very easy. Excel, yes, it can be easy for you, but paper A concepts are not easy for CM2 at all. So if you feel every day you can take out that kind of time, like 4 to 5 hours, then only go for CM2. Otherwise, I would recommend you going for CP2, CP3, these papers, Rishabh. Yes, anything you want to add on? No? Okay. Komal, ma'am, I started CM2 1 week ago, have done 2 chapters, and then recent CM2 attempt I failed. CB2 attempt, CB2 fail हो गई कोमल. I failed in CB2. But CB1 before as well. तो इस टर्म में CB1 एंड CB2 करो. CM2 अगर तुमने 1 वीक पहले स्टार्ट किया है फॉर IFO, do you think you'll be able to finish it? If you मैम सजेशन ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है उतना, मैंने उतना नहीं feel पढ़ा that है. you can, if you feel that you can, then go ahead. Otherwise, I would recommend you going for CB1 and CB2 together. Okay. ठीक है? So if I go for CM2 and CB1, should I do that or should I just do CM2? CM2, you have to be really sure about it. Can you give like 6-7 hours every day, 7 hours every day? Yes, I can. In that case, go ahead with CM2. But otherwise, you can also sit for CB1 and CB2 together. Okay, ma'am. But then you decide like whatever you are willing to study. क्योंकि CM2 में it is full, like बहुत interesting है. CB1, CB2 again will be complete theory. So if you are willing to go for that, then you go for CB1, CB2. Otherwise, just CM2. CM2 के साथ CB1 मत क्लब करो. क्योंकि you started 1 week back ना, तो नहीं कर पाओगे CM2 साथ में CB1 के. Okay, ma'am. Thank you. So whatever you want to study, and you will be able to study for 7 to 8 hours at a stretch, go for that. CB1, CB2 तुमने दे दिया तो उसमें उतना एफर्ट नहीं जाएगा comparatively. So you're suggesting CB1 and CB2? See, that's my suggestion. Because I feel CM2 you may not be able to finish and then do the revision also in that sense. But yes, I have students जिन्होंने 2 months में निकाला है, CM2 भी निकाला है, CS2 भी निकाला है. So it's up to you what you want to study at the end. Okay, ma'am. Thank you. ठीक है कोमल. Give Vedika, नहीं sorry, Shashank. Ma'am, when should X assignments should be done just after finishing your syllabus, so that you have a good concept, because X assignments are divided chapter wise. Like first X assignment can be first 5 chapters or first 4 chapters. So once you finish the entire syllabus, go for X assignments. Now X assignments की classes already uploaded होते हैं, जैसे मेरे CS2 में CB2 में uploaded है. I am not very well aware of CM1, CS1. I hope उसमें भी uploaded होगा ही. तो definitely watch the classes, because class देख के जब X assignment solve करते हो तो आप कोई सामने बैठा है जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो और ज्यादा सिंक इन होता है rather than solving on your own. हो सकता है when you are solving on your own, you are doing some kind of mistake which is being repeated and आप उसको समझ नहीं पाओगे कि वो mistake repeat हो रहा है. But when you are solving it with the teacher, तो आपको अपना mistake, concept clarity सब कुछ समझ आएगा. ठीक है? And then you move to past paper after that. And X assignments can be easily done in like 4 days. एक दिन में आप 2 X assignment भी कर सकते हो. Okay, ma'am. Thank you. Vedika gave CS1, CB2, cleared CB2, couldn't clear CS1. Score 51, currently preparing for CS2 attempt, where I've only covered 30-40% of the syllabus until now. Go for Vedika. Do you want to go for CS and CB2 together? Ma'am, my plan was to go for CS1 and CS2 both together.
बट Yes, अभी CS2 में थोड़ा बैकलॉग्स है तो आई एम थिंकिंग आई डोंट नो। ठीक है, तो जितना भी बैकलॉग है ना उसका लिस्ट बना के रखो, मेरे 8:30 वाले सेशन में डालना। आई लेट यू नो कि तुम दोनों कर सकती हो कि नहीं। लिख के रखो मैसेज टाइप करके, सो दैट यू कैन क्विकली पेस्ट इन द चैट बॉक्स कि मैम मेरा इतना इतना हो गया है। सो आई लेट यू नो कि दोनों कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यू कैन अटेंड माई 8:30 सेशन। उसमें मैं CS2 पे ही बोलूंगी, हाय मैम, मैं कृष्णा, रीचेकिंग और समथिंग कुछ नहीं होता है कृष्णा, सब मतलब ड्रामा तो नहीं बोलना चाहती हूँ, बट मतलब मैंने देखा ही नहीं किसी का कि हाँ, एक मेरे स्टूडेंट का IAS से हुआ था, बट उसका कुछ अलग ही केस था। बट मार्क्स वाला केस IFOA कभी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो तो छोड़ ही दो। if you're not sure about CS2 Krishna, attend my 8:30 session also. You can also do that at the same time, but you can appear for CS1 again if you're not sure about it. बिकॉज मैम CS1 में मेरा भी वही है कि हाइपोथेसिस वाला जो सम है उसमें तो पूरा पूरा लिखा है, सही है, फिर भी मतलब 7-8 मार्क्स में से मतलब 3 मार्क है, फिर वो 2 मार्क का तुमको लग रहा है, वो तुमको लग रहा है कि सही है, सही नहीं है। वो तुमको अच्छा। लग रहा है कि सही है। तुम एक काम करो, जो मैंने अभी बोला, एंड दिस आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड लिसन टू। जहां तुम्हें फील हो रहा है कि मैंने किया है बट मार्क्स नहीं मिला है, वो वाला आंसर आप फिर से लिखो एंड 1-to-1 मेंटर के साथ चेक करो। वो आपको बताएगा Okay. कि सही है कि नहीं। हाँ, And दैट the इज steps करेक्ट। जो स्टेप्स आप देख रहे हो, वो स्टेप्स शुड नॉट कम फ्रॉम योर रिविजन नोट, इट शुड कम फ्रॉम योर मटेरियल, ओके सॉरी ओके रिविजन नोट्स। ठीक है हाँ। मैम, इज देयर एनी अरे ये ऋषि अलग अलग हमेशा कहाँ से तुम आता है? हाँ, yes, there is a different session for CS2 at 8:30. Very good, Krishna. Congratulations on clearing CB2. Ayan, ma'am, I failed CS1, score 50. Can I start with CB2 along with CS1? Yes, definitely. Not working. Ayan, definitely CS and CB2 best combination, but only if you can promise me that, ma'am, I will be studying like 5 hours for CS1 and 3 hours for CB2, or maybe more than 3 hours for CB2. If you can give Yes, ma'am. 8 hours, then definitely go ahead. Yes, But you then can. is it possible if I give 3 to 4 hours daily for CB2 alone? So is it possible? Yes. All एक right, काम ma'am. करना यान, इफ यू आर गुड इन इकोनॉमिक्स, मेरा CB2 में ना फर्स्ट 14 चैप्टर्स का फास्ट ट्रैक क्लासेस अपलोडेड है। Okay. उसमें मैंने एक एक चैप्टर को मान लो कम टाइम में करवाया है, Okay. तो वो क्लासेस आप देख सकते हो फर्स्ट The 14 thing is, ma'am, चैप्टर्स। I just cleared 12th अभी. So CM1 I've cleared. CS1 मैंने दिया था पर थोड़े मार्क्स ही फेल हो गया. हाँ, तो तो इकोनॉमिक्स में ऐसा भी एकदम नहीं है बेस, मतलब बस कोई 12th बात का ही नहीं, है. फास्ट ट्रैक करो, हो जाएंगे। अगर फास्ट ट्रैक में डाउट है तो मेन क्लास जाके देख लेना, मेन Right. क्लास तो है ही, और फास्ट ट्रैक फर्स्ट 14 चैप्टर्स का ही है, पर उसके आगे का नहीं है। बट उसमें पूरा हो जाएगा फास्ट ट्रैक में सारे अरे क्लियर. हाँ, मैंने पढ़ा है। ओके मैम, ठीक है. यू आर स्टडिंग फ्रॉम CB2 बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया, ओके मैम, थैंक यू सो मच. आई कैन वाउच फॉर इट। ठीक है ओके मैम, थैंक मैम, यू. I failed CM2 twice this time. I felt during exam that I got blank. Vedika Chhajer, यस मैम। exam I'm not sure what to do. मैम मैंने CP2 भी दिया है, CP2 का रिजल्ट अवेटेड है, लास्ट टाइम मेरा 2 मार्क्स से रह गया था। I remember. हाँ, ब्लैंक हो गए एग्जाम में इतने टाइम बाद भी। हाँ, पेपर ए में मैं पूरी ब्लैंक हो गई मैम। पेपर भी मेरे को लगा था अच्छा हुआ है, बट ब्रेकअप देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है CM2 में। है, मेरे को जो मेजर कंसेप्ट वहाँ पे दिक्कत देता है, कॉल एंड पुट वाला जो सम्स आते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत जरूर देता है, बट बाकी मेरे को कंसेप्ट है, क्लियर है। एक्सरसाइज में सॉल्व किया है? हाँ, लास्ट टाइम किया था मैम, लास्ट टाइम नहीं, मतलब अप्रैल टर्म के लिए किया था। अप्रैल टर्म के लिए किया था। देखो, पुट कॉल का जो क्वेश्चंस है ना, वो समझना तो खुद से ही पड़ेगा, बिकॉज पुट कॉल में होता है कि कॉन्सेप्ट हमें आता है, पर हम फास्ट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में हम स्टक फील करते हैं, हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। हाँ, एग्जाम तो हम पेपर लोग, में काफी क्वेश्चंस उसी I टॉपिक को रिलेट करते हैं। I absolutely understand, Vedika. ये जो है ये बहुत कॉमन है. This is not only you, this is very common. Options are actually difficult.
ठीक है, तो अगर कॉन्फिडेंस है CM2 करो, बट इस बार ही ना मिनिमम टू मिनिमम 10 पेपर्स दो एज अ मॉक। 10 पास्ट पेपर्स बैठो पूरा 3 hours 20 minutes एंड मॉक के जैसे लिखो, पूरा एग्जाम कंडीशन कर दो घर में गेट लॉक करके। मैम अभी से अगर मैं एवरी वीकेंड भी काउंट करूँ तो मेरे पास कितना वीक्स आई थिंक 2 महीना है। you're working ना? यस यस मैम, मेरा अभी भी ऑफिस चालू है, मैं तो ऑफिस से ब्रेक लेके इधर आई हूँ अभी। करना तो पड़ेगा ना, पर क्या करे। हाँ मैम। Let's see if you clear your CP2, which I hope you will, तो CM2 ही करो, don't take a Okay, break ma'am. from CM2। ठीक है And मैम। एक ब्लैंक इंसान लाइफ में एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। CT8 जब मैंने दिया था, I gave it from India and UK both। मैंने जब इंडिया से दिया था, it was March 2018। You all can go back and check the results। 2018 था ना? हाँ, March 2018 था। IEI का रिजल्ट दिखना, only 12 students passed। I think 10% से भी कम था रिजल्ट्स। We were sitting in the class, बहुत जन ने दिया था उस टाइम कैलकाटा से। I turned back, I saw no one is writing only, सब बैठे हैं। CT8 is actually difficult, CM2 is actually difficult, and I absolutely understand what you are saying। Blank बहुत common है होना, but for that what you can do is office hours, office के पहले बाद में जितना भी, मान लो 2 hours भी at a stretch, if you are able to write a mock, do that। Okay मैम। Fix assignments and do that। Book 1-to-1 mentoring sessions only for options। कि कोई ऑप्शंस के क्वेश्चन निकाल के 1-to-1 मेंटरिंग हो सकता है, उसका समझाने का तरीका आपको और अच्छे से समझ आए। ओके मैम, मैं CP2 का रिजल्ट मैम आपको अपडेट करती हूँ। श्योर। इश्ना, मैम यस यू शुड गिव CM2 CB2 साथ में नहीं दे पाओगे ना अभी तो हमें। Yes, ma'am. Dates are clashing. So which one should I pick? CM2 how much you got? Ma'am, I got 57 and the passing was 59. What do you want to do? You want to go for CM2 again? Ma'am, मतलब आप गाइड कर दो कि what would be better? What you want? First you tell me what you want to do. मैम आई थिंक CM2 ही कर लेती हूँ ताकि एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम क्लियर हो जाएगा तो मेरे को ऐसे बर्डन नहीं रहेगा थोड़ा। क्योंकि CM2 अभी फ्रेश है तुम्हारे लिए। 2 मार्क्स से फेल होना मतलब प्रैक्टिस लाके, पेपर बी में लाके, आप कमेंटिंग पोर्शन में लाके, या स्टेप्स तुमने नहीं दिखाए होंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो 6 महीना ब्रेक लग जाएगा तो कॉन्सेप्ट वापस से करने पड़ेंगे। ओके। तो गो फॉर CM2, आई वुड सजेस्ट दैट। एंड मैम मतलब आई विल टेक द एक्सटेंशन, तो शुड आई वॉच द वीडियोस पूरा और शुड आई जस्ट डू द रिवीजन पार्ट? Only the revision part, X assignments, past paper solving, revision note solving, that's it। MCQ from the from this MCQ आपके लिए भी उतना needed नहीं है because your concepts are fine, but still if you want to you can go for it। Not needed। Okay. Concept classes वापस से देखना is not at all needed। कोई एक particular concept लगे देखना है, revisit करना है, that's fine, but otherwise। Okay, thank you। Kanan, ma'am, CS1 fail CS1 by scoring 50 marks, clear CB2। Working, Kanan, are you there? If Yes. you're working, then CM1, CS1 will be difficult for you। Okay, CM1 में कितना हो गया है? 40% I would say। What do you want to do? एक ही पेपर करो, I would recommend। Okay, कोई भी एक करो, हाँ। okay, जो भी आपको लगे, या फिर अपने लाइक रेस्पेक्टिव फैकल्टी से डिस्कस करके कोई भी एक पेपर करो। ठीक है। Okay, 1-to-1 mentoring also you can book for discussing in depth अगर कुछ डिस्कस करना है, but go for only one paper। Ideally go for CM1, नहीं सॉरी CS1 you fail ना, CS1। ठीक है। Okay, बट अगर CM1 लग रहा है कि नहीं यार मुझे अभी नया पेपर नहीं शुरू करना, मुझे CM1 ही कंटिन्यू करना है, देन गो फॉर CM1। बट अगर लग रहा है कि नहीं CM1 नहीं हो पाएगा, CS1 ही मैं वापस पिक करती हूँ बिकॉज वो वापस से फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ेगा, तो CS1 करो। लाइक इट्स अप टू यू entirely, but anyone, not both, since you're working। ठीक है, and since you haven't cleared as well, अगर तुम्हारा पेपर्स क्लियर रहता
तो वो कॉन्फिडेंस रहता है एक थोड़ा मन में, तो मैं बोल देती 2 पेपर करो. ठीक है. आदित्य अग्रवाल, मैम आई गॉट सीन. What should I do? You should appear for CB1 again. What else you can do? मैम CB1 मैंने CM1 भी स्टार्ट कर दिया है तो और CM1 का मेरा 70% तक हो गया है. दोनों दो CM1 CB1. ओके डेली 10 आवर्स पढ़ो. ओके मैम. दिवांश, restart for CM1 from scratch dear Divansh. कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है देखना, नोट्स गो थ्रू करो, रिवीजन नोट स्टार्ट करो सॉल्व करना. ओके मैम. सृष्टि, मैम आई केस यस CB2 साथ में 4 hours every day CB2, CS1 every day 4 hours सृष्टि. And CS1 should only be typing, no copy pen. हो जाएगा. थैंक यू मैम. मुस्कान, you want to go for CS1 only, Muskan? Are you there, Muskan Chavda? You want to go for only CS1 और CM2 कंटिन्यू करना है? बोलो जल्दी, इतना टाइम नहीं है यार, मुझे 7 minutes में सेशन खत्म करना है. स्वास्ति बंसल, I'll wait for you to speak, मुस्कान. ठीक है. स्वास्ति, मैम scored below 40 in CM1, was expecting a fail. Go for CM1. Okay, ma'am. And how do you improve your commenting is not what I can say in this session, Swasti, sorry. That's another session altogether. ठीक है, तो CM1 पे हम एक सेशन रखेंगे. Students who could not clear CM1, how to go about it, we'll keep a session. Commenting, however, if you want to improve, you have to read comments a lot. आपको keywords jot down करने पड़ेंगे. Revision note में comments जो हैं उसको बार बार read करो and type करो. ठीक है. जय Okay, छाजन, ma'am. Thank you. I score 45 and currently preparing for CB1. CB1 ही प्रिपेयर कर रहे हो कि कुछ और की टाइपो हो मैम गया? CM1 दोनों दो CM1 CB1 दोनों दो. यस मैम. दोनों देना है. जब भी दोनों देना है मतलब समझ जाओ 3 घंटे प्लस पढ़ना है. ठीक है. ओके मैम. ना पढ़ रहे प्लस 3 hours. ध्रुवी जवेदी. So which paper should I do? 50% हुआ है खाली CM2. What do you want to go ahead with, Dhruvi? CM2 or CS? Ma'am, I guess CS1 only because it's still fresh. Go for CS1. दोनों पेपर तो नहीं कर पाओगे जॉब के साथ. Okay. Go for CS1. Okay. Thank you. तनुज, मैम आई गॉट, बट इस टाइम चेंज करना अपना पेपर पढ़ने का तरीका. हो सकता है Yes. प्रैक्टिस में लाके, पेपर बी में लाके, कहाँ लाके, वो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन देख के समझ आएगा. तनुज, Okay. मैम आई गॉट 56 in CS2. Go for CM2. What will you do? नहीं क्लियर हुआ CS2, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टर्म देना. CM2 देने का मन है CM2 दो. तनुज, Muskan, I'll come to you. Tanuj, are you there? Yes ma'am. Go for CM2. Ma'am, can I defer it till April? It is fine. CM2. CS2. हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. CS2 में कितना हुआ है? CM2 में मैम ज्यादा नहीं हुआ है. CM2 में कितना? You are 20 saying that you are 30%. preparing for CM2 and you want to give CM2 in September, ना? Yes ma'am. हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. CS2 अप्रैल में तो बोलोगे नहीं कॉन्सेप्ट्स, नहीं बोलोगे. ठीक है. What should be the right way of revising CS1 is not what I will take in this session. Hello ma'am, I got Arpita 45 in CM2 and was currently preparing for CB1 and CB2. So should I give? Yes, CM2 के साथ आप CB2 तो दे ही नहीं सकते हो. CB1 and what do you want to do, Arpita? Are you there, Arpita? तुम्हारा क्या मन है? मैम एक्चुअली मेरा पेपर ही बहुत अच्छा गया था CM2 का,
बट पेपर भी खराब हुआ था तो इसीलिए मुझे मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन देखा है? नहीं देखा। वो देखो, वो गो थ्रू करो, फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। हो सकता है पेपर ए में भी मार्क्स कम आया हो, जरूरी नहीं होता हमेशा कि हम जो सोचते हैं वो सही हो। ठीक है, इफ दैट्स द केस, इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर वीक, पेपर ए में भी मार्क्स अच्छा नहीं आए, देन गो फॉर CP1 CP2 टुगेदर, क्योंकि सिंस यू आर ऑलरेडी स्टडिंग फॉर इट, अदरवाइज यू टेक अप CM2। ठीक है, ठीक है। अगर पेपर ए में मार्क्स ठीक ठाक आए तो CM2 वापस करो, वरना CM2 नेक्स्ट टर्म देना शुरू से पढ़ के। मैम आई फेल, ऋषिका बैद। CB1 एंड CM2 दोनों करना है ऋषिका? मेरे को लग रहा मैं सिर्फ CB1 दूंगी थी बिकॉज सितंबर में मेरा कॉलेज का भी एग्जाम है। तो खाली So I CB1 think दो, I should- टेक अ ब्रेक फ्रॉम CM1। बहुत बार होता है कि पेपर नहीं निकलता है, ब्रेक लेने के बाद वापस रिज्यूम करने से निकल जाता है। सो टेक अ ब्रेक फ्रॉम CM1, ओनली गो फॉर CB1। ट्राई करो CB1 एक बार में निकल जाए, इट्स नॉट इजी, CB1 इज ऑल्सो नॉट इजी। ट्राई करो एक बार में निकल जाए, एंड CM1 के लिए आप नेक्स्ट टर्म देना। मुस्कान, आई विल कम टू यू एट द एंड। Jay Charger, ma'am, if I give CB1 along with CM1, then it won't be possible for me due to my college timing. So should I? Jay, did we have a talk? यस Are you मैम। there? क्या डाउट है? मैम अगर मैं दोनों पेपर साथ में दूंगा तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं कॉलेज भी फिर 5 बजे खत्म होता है, तो वैसे तो क्या करने का मन है? मैम मैं तो CM1 का ही सोच रहा हूँ। CB1 तुमने कितना किया है? मैम ये CB1 तो अभी नहीं, क्लियर नहीं हुआ अप्रैल में। क्लियर नहीं हुआ, एंड CM1 हाँ कितना हो गया? मैम सर के साथ ही चल रहा हूँ, बस पेपर भी में तो थोड़ा CM1, बैक है। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट तो CM1 दो खाली, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में रश करने का जरूरत नहीं है। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, CM1 दो खाली। ठीक है, बट आपको कॉलेज के साथ एग्जाम मैनेज करना इज वे इजियर देन जॉब के साथ पेपर मैनेज करना। ठीक है, तो अगर अभी अभी सिंस यू हैव नॉट क्लियर्ड, आई वुड नॉट फोर्स यू, बट एक बार अभी CM1 निकलेगा, नेक्स्ट टर्म से दो पेपर देना। ठीक है, ओके मैम। इस बार ही एक पेपर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट एक बार कॉन्फिडेंस आने दो, बूस्ट होने दो, CM1 निकलेगा, फिर नेक्स्ट टर्म से दो पेपर देना। ओके मैम। हीर शाह, मैम आई गिव बोथ CM1। ये क्या बात हुआ हीर? जो बच्चा बोलता है ना CB2 नहीं निकला, बहुत खराब फील होता है मुझे। मेरे से लिया था क्या? Yes. And now I am preparing for CS1। हाँ, CS1 CB2 करना है दोनों, एंड CB2 में तुमको फुल 39 on 39 डालना है MCQ में। Mainly MCQ में ही गया, मैंने देखा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुम्हें क्लास में कभी मैंने देखा ही नहीं था हीर। जब Because मैंने क्लास I failed CM1 for the first time, so मैंने CM1 में अलग क्लासेस जाती थी, तो वो मेरा सेकेंड टाइम था और मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था CB2, एंड आई इतना ऑफ कोर्स उतना अच्छा प्रेप नहीं था मेरा, बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम था उसके लिए। तो इस बार CB2 का जितना हो सके लाइव क्लासेस अटेंड करो, जितना हो सके हमारा प्लेटफॉर्म भरती है MCQ क्वेश्चन से, जितना हो सके सारे MCQ सॉल्व करो, लाइव क्लासेस अटेंड करो, एंड पास पेपर प्रैक्टिस करो। एंड फॉर री-एक्सेस अगर मैं अभी सिर्फ CS1 दूं एंड फिर मैं CB2 दूं, बिकॉज वो आई फील मतलब अभी आई नीड अ ब्रेक या समथिंग। नहीं, you don't need a break from CB2. CB2 is not a paper to take a break from. Okay. Give CB2 CS1. How much did you score in CB2? 45. It's not a paper to take a break from. CS1 CB2 दोनों हो जाएगा। Okay. बस तुम्हें 2.5 hours every day additionally पढ़ना है। क्या करना है? 3 चीजें करनी है। मेरा जो नोट्स है वो रीड करना है पूरा, MCQ सारे MCQs बनाने हैं जितने पोर्टल में है, लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं, पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, मिनिमम 15 पास्ट पेपर्स सॉल्व करने, दैट्स इट, हो गया, और कुछ नहीं करना। Okay. ठीक है, नाउ कमिंग टू मुस्कान, चलो अनम्यूट करो, क्या बोल रही हो तुम?
मैम लाइक आई गॉट 57 इन CS1 और मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छा है, बट मैम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा हो गए थे पेपर में, इस चीज़ की वजह से आई फेल्ड। और मैंने CM2 को ऑलरेडी 80% पोर्शन मेरा हो गया है इन पेपर है, और पेपर बी में थोड़ा बाकी है। सो मैम व्हाट शुड आई डू? to give both CM2 CS1? मैम यस, मैं ऐसा टाइम दे सकती हूँ दोनों पेपर्स को? दोनों दो, ओके मैम। दोनों दो। बट अगेन मुस्कान, दोनों देना तो एवरीडे बहुत पढ़ना पड़ेगा। हो जाएगा, आई मीन अगर तुम करना चाहो। मेरा स्टूडेंट है जिसने CM2 CS2 दोनों साथ में निकाला था फर्स्ट टाइम में, एक नहीं है, 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। CS1 CS2 साथ में निकाला था, तो CS1 CM2 भी निकाल सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आराम से पढ़ो, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना, हो जाएगा। थैंक यू। Hello, that's it. I will end the session here. I'll take one more session shortly in like few days. So आपको जो भी और doubts होंगे आप उसमें पूछ लेना। जो क्रक्स है सेशन का मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें करनी है मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल दिया, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। इफ यू वांट टू सी द वीडियो अगेन, गो एंड सी द फर्स्ट 15 minutes again. But yes, you have to work harder and you have to change the process of your studies if you have failed once, twice, whatever. ठीक है? Thank you guys. Bye bye. We'll meet soon.